Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on NAV of mutual fund. So let us see data given in this scenario. So we are given a mutual fund raised to funds on 1st April of a current year by issuing 10 lakh units at the rate of rupees 17.50 per unit. Out of this fund, rupees 160 lakhs invested in several capital market instruments and initial issue expenses amounted to rupees 9 lakhs. So then we are given during the month of June, the fund sold certain securities worth rupees 100 lakhs for rupees 125 lakhs and it bought certain securities for rupees 90 lakhs. The fund management expenses amounted to rupees 5 lakhs per month. During the quarter ending 30th June, the dividend earned was rupees 3 lakhs. 80% of realized earnings, which include capital gain and the dividend received, were distributed among the unit holders. The market value of the portfolio was rupees 175 lakhs. So then different MCUs are given. So first of all, we have to calculate amount of cash balance at the bank of a mutual fund company as on the 30th June. तो इट मीन्स तो ये आपको देखा गया है फॉर वन क्वार्टर फ्रॉम अप्रैल टू जून। तो आपको कैलकुलेट करना है म्यूचुअल फंड कंपनी का कितना कैश बैलेंस है। तो स्टार्ट करते हैं देखो क्वेश्चन। सो MCQ 1 में आपको कैलकुलेट करना है हाउ मच इज कैश बैलेंस सो एज ऑन 30th जून, दिस इज एंड ऑफ अवर क्वार्टर। तो उसके लिए देखते हैं जब आपने ये म्यूचुअल फंड कंपनी स्टार्ट की है तो उस टाइम कितना बैलेंस है आपका। तो लेट अस शो बैलेंस शीट ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी। तो दिस इज एज ऑन 1st अप्रैल, दिस इज ऑफ करंट ईयर। रुपीज हम शो कर रहे हैं लैक्स में। सबसे पहले देखो आपको मेंशन किया है 10 लाख यूनिट्स आपने इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 17.50। इट मीन्स 10 रुपीज आपकी जो है वो कैपिटल मानी जाएगी और म्यूचुअल फंड में इस कैपिटल को हम कहते हैं यूनिट कैपिटल। So 10 lakh units are issued of rupees 10 each. It means 100 lakhs. पर आपने इशू किए हैं 17.5, इट मीन 7.5 आपका है प्रीमियम, जिसको हम कहते हैं यूनिट प्रीमियम। तो यूनिट प्रीमियम रिजर्व, और यू कैन यूज द टर्म रिजर्व आल्सो। So this will be 10 lakh into 7.25. So 75 lakh is our unit premium reserve. And out of this we have invested 160 lakh funds in several capital market instruments. This is our investment 160 lakhs। पर फिर आपके हो रहे हैं कुछ इशू एक्सपेंसेज जिनको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज आर गिवन टू बी अवर 9 lakhs। Then balance sheet should be equal. It means balance will be our cash balance. This is as on 1st April. So this is cash at bank. So total 175. This is our 6. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट विल बी कैश बैलेंस बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर। सो लेट अस सी हाउ मच इज कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर इज एंडिंग ऑन 30th जून। तो फॉर दिस पर्पज नाउ यू टेक ये अब आपका जो 6 है ये बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो यू कैन राइट कैश बैलेंस एज ऑन 1st अप्रैल। रुपीज आपके लैक्स में चल रही हैं, दिस इज 6 रुपीज इन लैक्स। अब इसमें ऐड करके हैं जो भी आपकी रिसीट्स हैं। तो रिसीट्स में देखो सबसे पहले आपको मेंशन किए हैं कुछ इन्वेस्टमेंट की 100 लाख ही आपने सेल कर दी हैं 125 लाख से। फिर आपने कुछ नई इन्वेस्टमेंट परचेज की हैं 90 लाख से। फिर आपके मैनेजमेंट एक्सपेंसेज हैं 5 लाख पर मंथ। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिसीट्स में हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो दिस इज 125 lakhs। Then we subtract to payments. Payments हैं आपकी we have purchased some new investments. Purchase of investments. So this is given to be for 90 lakh rupees. This is negative. फिर आपके एक्सपेंसेज हैं पर मंथ, इट मीन्स फॉर 1 क्वार्टर में आपके हैं 3 months। सो व्हाट विल बी एक्सपेंसेज पेड। These are 5 lakh per month into 3 months. This will be 15 lakh.
So then you can see, so then during the quarter, so this dividend earned is rupees 3 lakhs. फिर आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, दिस इज रिसीव्ड डिविडेंड अर्निंग, दिस इज गिवन को भी 3 lakhs. And further they are saying 80% to realized earning which is capital gain and dividend were distributed to unit holders. जिसे कहा कि डिविडेंड पेड टू यूनिट होल्डर, तो ये भी आपकी पेमेंट है माइनस हो जाएगी डिविडेंड पेड। तो ये आपने देखो पे करना है 80% ऑफ जो आपको कैपिटल गेन हो रहा है। तो कैपिटल गेन है 100 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने सेल की है 125 लैक्स में, तो उसमें कैपिटल गेन हो रहा है आपको सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में 25 और प्लस आपको डिविडेंड जो रिसीव हो रहा है 3 लाख, तो उसका 80% आपने पे कर दिया है। तो दिस विल बी 28 टाइम्स 80% 22.40। तो ये माइनस कर लीजिए। अब आप पेमेंट्स बैलेंस आपका कैश का बैलेंस आ जाएगा एज ऑन 30 जून। तो लेट अस सी हाउ मच इज दिस इज अवर 131 प्लस 3 माइनस 105, so minus 22.4, तो किसी कमिंग 6.6 लाख। तो रुपीज आपके हैं लैक्स में 6.60 लाख इज अवर कैश बैलेंस। So then you can see, so which option is correct? Option B is correct. So answer is our option B. So then we have second MCQ. In this they are asking calculate NAV per unit of a mutual fund. So as on 30th June, it means end of quarter. तो उसके लिए देखो पहले देखते हैं बल्कि बैलेंस शीट क्या है, उसकी क्या पोजीशन है। बैलेंस शीट ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी, तो दिस इज एज ऑन 30th June विच इज एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। तो अमाउंट्स आपके रुपीज चल रहे हैं लैक्स में। तो वी हैव अवर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, रुपीज आ रहे हैं लैक्स। तो सबसे पहले देखो इन्वेस्ट आप एसेट साइड देखिए, इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके पास। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आपने परचेज की थी जिस वाज फॉर 160 लैक्स। फिर इसमें से आपने 100 लाख की जो कॉस्ट थी इन्वेस्टमेंट की ये सेल कर दी है माइनस 100, प्लस आपने 90 की परचेज कर ली है। तो इट मीन्स इट्स बुक वैल्यू इज कमिंग 150 लाख, ये इसकी बुक वैल्यू है। बट नाउ दे आर सेइंग दैट एज ऑन 30 जून मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो वाज 175 लैक्स। अब इसकी मार्केट वैल्यू आपको लेनी है 175। देन यू शो व्हाट इज द कैश बैलेंस। कैश बैलेंस जैसे आपने कैलकुलेट किया है जिसे कि 6.60 लैक्स। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके सेम ही हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो दीज आर 9। दिस विल बी अवर टोटल बैलेंस शीट, दिस इज 190.60 लैक्स। तो कैन यू शो ऑन इक्विटी एंड लायबिलिटीज है यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल इज सेम 100 लैक्स। यूनिट प्रीमियम इज आल्सो सेम 75 lakh. Then you have to show reserve and surplus, जिसमें आपका प्रॉफिट आ जाएगा एवरीथिंग। तो सबसे पहले देखो जैसे आपको मेंशन किया है जब आपने इन्वेस्टमेंट सेल की थी उसमें कैपिटल गेन हो रहा है हमें, तो जिसे 25, फिर आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है जिसे कि 3, फिर इसका 80% जो था वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो 28 इंटू 80% 22.4। फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये रिवैल्यू हो गई हैं, उससे रिजर्व आ जाएगा 175 माइनस 150 जिसे 25। और आपके कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं 5 लाख पर मंथ, सो दिस मनी इज अवर 15 लाख। So this will be balanced in our reserve and surplus. So this you can see this is 28 minus 22.4 plus 10. This is 15.6. So this is our balance sheet which is 190.60. So they are asking calculate how much is NAV per unit of mutual fund as on 30 June. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं NAV, this is at the end of a quarter. So which will be equal to आप टोटल एसेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। टोटल एसेट्स हैं आपकी जिस मंथ
माइनस अवर लाइबिलिटीज, कोई लाइबिलिटी नहीं है, और यू कैन गेट यूनिक कैपिटल प्लस रिक्वायरमेंट सरप्लस माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इट मीन्स अवर नेट एसेट्स आर 190.60 माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स हैं आपके 10 लैक्स, दिस इज 190.6 माइनस 9, दिस इज 181.60 divided by 10. So NAV per unit is rupees 18.16. You can say which option is correct. So option C is correct. So answer is our option number C. NAV rupees 18.16 by the end of this quarter as on 30th June. Next we have MCQ number 3. So in this they are asking calculate the return to the unit holder during the quarter ending 30th June. तो आपने सिर्फ एक क्वार्टर की रिटर्न कैलकुलेट करनी है टू यूनिट होल्डर। तो लेट अस सी व्हाट विल बी फार्मूला फॉर दिस रिटर्न टू यूनिट होल्डर, विच बेबी डिनोटेड एज आर आई, को आई शो कर रहा है जो भी आपकी रिटर्न है फॉर टाइम पीरियड। फार्मूला है जितना आपको डिविडेंड मिल रहा है पर यूनिट प्लस NAV एट एंड ऑफ दिस पीरियड माइनस NAV इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पीरियड अपॉन ओपनिंग NAV टाइम्स 100। तो पहले कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले NAV एट एंड अभी आपने कैलकुलेट की थी एट एंड ऑफ दिस क्वार्टर विच वाज अवर 18.16, दिस इज एज ऑन 30 जून। नेक्स्ट लेट अस सी व्हाट वाज NAV इन द बिगिनिंग। देखिए आपने जो यूनिट अभी इशू किए थे टोटल थे 175 लाख और उसमें कुछ आपके इशू एक्सपेंसेस थे। तो व्हाट वाज नेट एसेट्स 175 लाख minus issue expense 9 divided by number of units 10 lakh. So this will be 175 minus 9 divided by 10, 16.60. This is NAV in the beginning. It means as in 1st April. Then you see how much dividend received by unit holder. तो टोटल डिविडेंड देखो आपको मेंशन किया था 28 का आपने 80% डिस्ट्रीब्यूट किया है डिविडेंड 22.4 lakhs divided by 10 lakh units. So dividend per unit is rupees 2.24. So now you can calculate return to unit holder during this period. So dividend 2.24 plus closing NAV 18.16 minus opening NAV 16.60 upon 16.60 times 100. So this is 2.24 plus 18.16 minus 16.6 divided by 16.6 times 100, which is 22.9%. This is return achieved by unit holder during this quarter. You can see which option is correct. Answer is option number A. So in this lecture we did a case scenario based on NAV of mutual fund. Further copies we will continue next lecture से। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।